بسم اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کون صاحب بلائیں؟ میں تو شہر الہ آباد کی ایک جگہ ہے ہنومان گنج. اچھا، ہنومان گڑھ سے. ہنومان گنج سے بول رہا تھا. اچھا صاحب، فرماؤ صاحب، کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ کیا واویلا مچا ہوا ہے اچھا پر اچھا جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ڈیلی آپ کی کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ آ رہی ہے. اچھا، وہ انہوں نے کہا تھا نا، وہ پیر صاحب نے. کون کی صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسعودی کے پیر صاحب نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کو بتا دیا کہ وہ بریلوی سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ حفاظت فرمائے. بتائیے کربلا والوں کو بریلی بتانا، یہ دیوبند بریلی جب تھا بھی نہیں، ان کا وجود بعد میں ہوا، اور یہ اپنا عقیدہ ان پر تھوپنا. امام حسین علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں ہے. اہل بیت کا ذکر تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. کربلا اور دیوبند کا ذکر کہاں قرآن میں حدیث میں آیا ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ فکر کیوں لگی ہے؟ وہی تو فکر اس بات کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے بریلی بتایا. اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے. امام حسین علیہ رضی السلام اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ہی تو ہیں وہ. کیا معلوم کیسے ہیں ان کے خاندان کے، کہ اپنے خاندان پہ ناز نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے تو حضرت علی کے جبے پر بھی ناز نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں دیگر تبرکات پر بھی ناز نہیں ہے. مجھے ناز تو ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ہے اور حضرت میں صاحب پر ہے. ضیاء المصطفیٰ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، امیر لیکن حضرت علی المومنین کے فی جبے سے الحدیث حضرت حضور محدث کبیر شہزادہ حضور فروز شریعہ ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. بس بڑے عجیب عجیب معاملات چل رہے ہیں صاحب. اور غریب میاں کون ہے یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ ان پر ناز کیا جائے. سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کون ہے یہ بھی تو پتہ ہوگا آپ کو. چلو کوئی بھی عالم ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، اور ان پر ناز ہے جن سے لاکھوں کروڑوں لوگ خلاف ہیں مسلمان. آپ لوگ جو ہے ان سے باتیں کر کے کیا مقصد نکلے گا؟ یہ تو مقصد آپ کا تب نکلتا کہ آپ جو ہے آقائی و نعمتی وسندی حضور سیدی گلزار ملت سے بات کر لیتے ہیں. ہاں، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مطلب وہ انہوں نے کس مقصد کے تحت کہہ دیا ہے. حضور وہ تو سرکار پھر یہی دیوبندی، یہ بھی دیوبندی حضور کہتے ہیں کہ محدث صراط کبیر سے بات مستقیم. کر لیتے، یہی وہ آپ کو دیوبندی اس کا کہہ دیں مطلب گے، سمجھا دیتے. یہی دیوبندی کہہ دیں گے صراط مستقیم اس طرح سے خیال، اس لیے خیال والی بات لکھی ہے، اس نیت سے لکھی ہے. وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں دیوبند والے، یہی بریلی والے. کیا دیوبند والے کہہ دیتے ہیں؟ وہ جو صراط مستقیم میں عبارت ہے، خیال والی عبارت. ہاں، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نماز میں لائے، خیال لایا جائے تو کتنا خطرناک ڈھنگ سے لکھا ہے بعد میں انہوں نے. اپن تو اس کو لاتے بھی نہیں زبان پہ اس بات کو. وہ بھی حمایت کرتے ہیں کہ صاحب نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے لکھا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں دیوبند والے. ہم کہتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ خیال لانا اور آنے والی بات کب کس نے لکھی ہے؟ نہ صحابہ کرام نے کہا، نہ سنت تابعین نے. اہل سنت والجماعت کے تمام اکابر علماء سے آپ کو پتہ نہیں کیوں دقت ہے ہمارے لوگ. میں ریکارڈنگ سنتے پریشان ہو گیا. آپ کافی بارہ حضرت صاحب، مطلب تمام اکابر علماء سے آپ کو کیا دقت ہے؟ یہ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں، اور کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. پانچوں مسلک کا نعرہ لگاؤ. کربلا والے مسلک اعلیٰ حضرت پر تھے. نہیں تو یہ مولوی جی ساجی ڈڑے والے، کوٹا والے، راجستھان والے مولوی جی ساجی ڈڑا والے بھی یہی حمایت کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہو کہ امام حسین کو بریلوی کہہ دیا تو کیا ہوا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ کہاں سے فارغ ہیں حضرت صاحب؟ میں ہاں،
मैं तो अलजामिअतुल अशरफिया का भी पढ़ा हूँ और उसके बाद फिर अलजामिअतुल अमजदिया का भी पढ़ा हुआ हूँ। अजीज आप दोनों जगह से पढ़े, घोसी से और वहाँ से? घोसी से भी पढ़ा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। माशाल्लाह साहब, कुछ पैगाम नोट कराओ, आवाम सुने आपका पैगाम भी। भाई मैं पैगाम तो दे रहा हूँ आपको, जब ये पैगाम आप पहुँचाएं तब तो पैगाम तो नहीं। ठीक है साहब, ये भी बताओ, करबला में कोई भी जब बरेलवी थे तो यजीदी के भाई देवबंदी थे? करबला में ये सरकार गुजारे मिल्लत ने ये थोड़ी कह दिया करबला करबला, आप उनका अकीदा देखिए कि वो इस बात चलो से ठीक है, कहना क्या उन्होंने चाह ये रहे कहा हैं। है कि करबला में जितने भी थे सब बरेलवी थे, और जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर ओहद हाँ। होने, सब में बरेलवी थे। तो ये यजीदी कौन थे? इनको क्या देवबंदी कहोगे? ये देवबंदी थे? नहीं नहीं, उन्होंने अगर ये कह दिया कि करबला में सब बरेली थे, चलो खैर मान लिया उन्होंने कहा, तो क्या यजीदियों को आप देवबंदी बताएंगे कि वो देवबंदी थे? नहीं, पहले एक प्लेटफॉर्म पे आप बात करिए। नहीं नहीं, चलो ये हमने आपकी बात मानी, तस्लीम कर। अब यजीदियों को आप क्या कहोगे? देवबंदी? वही बात मैं कह रहा हूँ, पहले एक प्लेटफॉर्म पे तो बात करिए यार, दूसरा चलो प्लेटफॉर्म बाद में छेड़िए यार। चलो ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा तो आप उनका कहने का मकसद, इस बात से कहने का मकसद क्या? नहीं तो कादियानी ने, गुलाम कादियानी ने भी मसीह मऊद कहा था, अपने आप को नबी नहीं कहा था ना। ये कहा था कि मैं रसूल हूँ, नबी हूँ। ये कहा था मैं जिल्ली नबी हूँ, मसीह मऊद हूँ। तो क्या उसने डायरेक्ट कहा था मैं नबी हूँ? मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना ने आपको, क्या नाम है, मुझे लगता है कि आपको उन्होंने रिश्वत दे दिया है क्या कि यही सब बातें किया करो लोगों को? रिश्वत? और एक मौलवी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, बताइए। नहीं, ये इल्जाम है ये। नहीं, जो हक बात कहे तो उसे दबाना चाहते हैं कि हक बात क्या मत हक कहना। बात कहा उसने? उसे साफ कह दिया कि ये बुद्धू मियाँ साहब ने ऐसा कह दिया कि करबला में भी बरेलवी थे, जब बरेलवी का वजूद भी नहीं था। अरे मौलाना, वो अगर इतने ही पढ़े लिखे होते तो कुर्सी खिताबत पर बैठते तो फौरन ही बुराई चालू कर देते। एक हदीस बताने के शऊर तो नहीं है उनको कि कम से कम एक हदीस को बयान करके बता दें कि सही से। अरे इस्लाह करने का जज्बा तो रखते हैं। चलो खैर, ऐसे इस्लाह होती है गलतियाँ जैसे सब वो में इस्लाह है। कर रहे हैं। अरे साहब क्या कह रहा है? नहीं नहीं, वो जैसे इस्लाह कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठेंगे, हाँ, वो मटक मटक के ऐसा वो करेंगे जैसे कोई लगता है कि क्या नाम है, अब क्या है? ऑर्केस्ट्रा की जो है वो नाचने वाली लड़कियां। अरे अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा हैं? अस्तगफिरुल्लाह। कोई तरीका है जैसे बताते हैं वो? अरे अरे इस्लाह करने का मकसद है, इस्लाह करना अगर किसी को मकसद है तो कोई जरूरी है कि बदन हिला के आप इस्लाह करिए? ओहो, ये बात पकड़ी आपने। यही बात तो बैठकर कमरे में भी हो सकती है। और यही बात इस्लाह आपको नहीं नहीं, यही बात तो मसौली वो वाले मियाँ से भी कह लेना था कि मियाँ साहब ये कहने की क्या जरूरत थी कि इमाम हुसैन बरेलवी थे, बिल्कुल। हजरत लेकिन अब्बास ये जहाँ बरेलवी थे। कहने की बातें हैं वहाँ कहें ना। अगर उनसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया तो इनको ये चाहिए था कि उनसे राबता करते टेलीफोन पर या टाइम लेते कि मैं हजरत मिलना चाहता हूँ आपसे, तो एक उन्होंने मसले। बरसरे स्टेज कहा ना, इसलिए इन्होंने बरसरे स्टेज कह दिया, हाँ, क्योंकि एलानिया की तौबा एलानिया है, शर्रन की तौबा शर्रन है। कितनी बातें, कितने किसको किसको नहीं, मुअज्जिन को, इमाम को, किसको किसको बुरा भला नहीं ये आदमी कहता, मतलब किसी को ये आदमी छोड़ा है आज तक? बताओ वो सब शमसुद्दीन मकराना। अहले सुन्नत के लोग तो उन्हें बुलाते हैं साहब, हाँ, अहले सुन्नती लोग उनको बुलाते हैं साहब। वही बुलाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं बुलाते हैं, सही बात समझ गए आप? है। ये बात भी सही है। या तो आप ये बताइए जलसे किस लिए होते हैं, खाली यही बता दीजिए, जलसे किस लिए होते इस्लाह के लिए होते हैं साहब, इफ्साद के लिए नहीं होते हैं। हैं? इस्लाह के लिए होते हैं ना। हाँ, जलसे का मकसद होता है कि नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, बेशक साहब, अहले बैत का जिक्र हो, बेशक 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 सहाबा किराम का जिक्र हो। बेशक साहब। हाँ, अब आप ये बताइए, बहुत अच्छी बात कर रहा हो आप, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हो। जलसे का मतलब ये अहले बैत का जिक्र हो, सहाबा का हो, कुरान की आयतें बयान हो, तफसीरें बयान हो, हदीसें बयान हो, न कि ये कहा जाए कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, जरीमिया पर नाज है।
हाँ, और ये बहुत अच्छी बात बयान करी आपने। शमसुद्दीन मकराना कुर्सी पे बैठेगा, हाँ, वो हिला हिला के जो है बताने लगेगा कि फलाने ऐसे हैं तो फला बुद्धू है। हाँ, एक तकरीर में आपने सुना है, एक यूट्यूब सुना है, क्या नाम है शमसुद्दीन मकराना की? अच्छा, मुर्दाबाद वाला? नहीं, मुर्दाबाद तो कहा ही। कौन सा? एक मुर्दाबाद तो उसने कहा ही। हाँ, वो मौजूद है तो मुर्दाबाद तो कहेगा ही। अच्छा, वो कौन सा वाला क्लिप वाला? इसने एक तकरीर में कहा है, मैंने खुद सुना है इसकी यूट्यूब, एक दिन मैं सुन रहा था ऐसे, तो एक तकरीर में कहा कि आज मैं किसी मादर जात को छोड़ूंगा नहीं। अरे किसी मादर जात को छोड़ूंगा नहीं। ये स्टेज पर तकरीर के दौरान मतलब कुर्सी ये पे तो पर बैठ कर ये बात। तकब्बुर की अलामत है। तो जावेद सिद्दीकी एक नाजिम है, हाँ, तकब्बुर की शायर है, अलामत। एक शायर है। हाँ, तो ये तकब्बुर की अलामत। उनसे कोई इसकी बहस हुई थी, क्योंकि ये रहने वाला भी उसी इसी इलाके का है, गोंडही इलाके का रहने वाला है। बताया इनके रिश्तेदार में ज्यादातर वही है, जो भी हो, बल्ला आलम सवाब देवबंदी है कि नसबंदी है। हाँ, और जावेद सिद्दीकी वहाँ थे और दोनों में कुछ बहस हो गई, तो जावेद सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई अगर आपको इस्लाह करना है तो जिस तरीके से आप मुझे बुला लेते और बैठ जाते कमरे में और मेरी इस्लाह करते, मैं आपके कदम बोसी कर लेता अगर मेरी इस्लाह करते। ये बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन ये बरसरे स्टेज तुम जो है अगर मुझको छोड़ोगे तो मैं तुमसे कम पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। ये बात बहुत ऊंचे दर्जे की आपने। हाँ, अब आप बताइए, जावेद सिद्दीकी से इनकी बात हुई, अब ये कह रहा है कि आज मैं किसी मादर जात को छोड़ूंगा नहीं। तो साहब क्या किया जाए? चलिए क्लिक इसकी सुनिए, आपको ये बात पता चल जाएगी। नहीं, अगर मदरसा कह रहा है तो फिर उलमाए सुन्नत खामोश क्यों है? फिर सब मिलकर बाइकाट कर दें। या तो नहीं बाइकाट तो अहले सुन्नत वल जमात के हमारे अकाबिर उलमा ने तो क्या इसको मिला के रखा है क्या जो बाइकाट करने की जरूरत? हल्द्वानी में आए थे वो, अभी 4-5 दिन कुछ दिन पहले हल्द्वानी में भी आए थे। हाँ, तो अब हल्द्वानी वालों को क्या कहा जाए? मरदूत कहा जाएगा। वहाँ क्या बक्के गया? अब ये नहीं मालूम, लेकिन बुलाया था हल्द्वानी वालों ने। हाँ, हल्द्वानी वालों ने बुलाया था। वो सोचा कि मेरी जाहिल अवाम पागल है। अच्छा, माशाल्लाह। उसने ये सोचा था तक कि जाहिल अवाम पागल है, मैं लोगों की बुराई करता रहूंगा, मेरी दुकानें चलती रही। तो साहब ये जो कह रहे हैं, ये कहने दिया जाए, मतलब ये है कि शमसुद्दीन साहब बोले नहीं, जैसा जो कह रहा है वो कहने दिया जाए कि हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, अजहरी मियाँ पर नाज है, ये भी सही है। और करबला वालों को उन्होंने बरेलवी बताया, वो भी सही है। और ये भी कहा कि जो अजहरी मियाँ का नाम ले ले बीमार सेहतमंद हो जाएगा, ये भी सही है। ये तो सब कुरान के खिलाफ बातें, ये कुरान के खिलाफ है। हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत ने अगर इस बात को कहा, सरकार गुलजारे मिल्लत ने अगर इस बात को कहा कि क्या नाम है कि करबला में सब बरेलवी ही थे, आपका कहना यही है ना कि उन्होंने कहा कि करबला में सब बरेलवी ही? उन्होंने ही कहा था, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। उन्होंने ही कहा ना। अपन लोग तो इसके मुखालिफ हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि करबला में सब वही लोग हैं जो बरेलवी मसलक को मानने वाले हैं, वही करबला को मानते। कुछ भी कह दें तो साहब उसका मतलब सही बताया जाए। मैं तशरीह कर दे रहा हूँ। नहीं, ये बताओ, वो उनका मानना ये है, अकीदा है गुलजार मिल्लत का कि अरब में कोई भी मोमिन नहीं है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कोई भी इमाम मोमिन नहीं है, सब काफिर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आपको इसको भी सही मानोगे? सब काफिर है इमाम क्या? कि किसी के पीछे नमाज नहीं होगी? बताइए आप। ऐसा अकीदा? ये तो सही बात है कि वहाँ के किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं है, ये तो सही बात है। ये इसमें कोई कहने की बात है क्या? कैसी बातें कर? अरे यार, इतना कच्चा ईमान नहीं है हमारा मुल्ला। मतलब ये है कि वहाँ पर किसी भी इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी? किसी इमाम के पीछे वहाँ नमाज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने तो पढ़ी थी, अभी मैं गया था उम्रा करने ये रमजान में। हाँ, मैंने तो जमात से पढ़ी, तो मेरी नमाज का क्या हुआ था? आपकी नमाज वो आप जाने वो जाने। नहीं, मैंने तो नहीं दोहराई, मैंने तो पढ़ी। हाँ, मैं तो पढ़ता हूँ। नहीं, तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात में है कि अगर आपने किसी तरीके से मान लीजिए कि आपको नहीं जानकारी थी, अगर आपने पढ़ लिया तो अपनी नमाजों को दोहरा लीजिए। दोहरा दे।
वो अगर जानबूझ कर पढ़ी है कि साहब हम तो इसे मुसलमान मान के पढ़ रहे हैं, तो गुनहगार है वो। खाली गुनाहगार होगा, निकाह तो नहीं टूटेगा, हाँ निकाह भी टूट जाएगा। नहीं, अब निकाह के बारे में तो ये आप ही जान सकते हैं कि निकाह टूटेगा कि नहीं नहीं, टूटेगा। ये भी कहते हैं साहब अगर उनको मुसलमान जान के पड़ेगा तो निकाह टूट जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो निकाह के बारे में तो आपको ज्यादा जानकारी होगी कि वो तो निकाह टूटेगा जन्नत कि के नहीं अंदर खड़ा है, जो नमाज पढ़ा रहा है जन्नत में खड़ा है। टूटेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे हुजरे से लेकर वो जगह जो मिंबर तक है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, उस जन्नत में खड़ा होकर 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, और आप कह रहे हो मुसलमान नहीं, मान रहा हूँ मुसलमान नहीं। हाँ, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अकीदा नहीं जानते आप क्या? नहीं, ये बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सत्ते में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, हाँ और उसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है जिसमें अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो क्या जन्नत की क्यारी में 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला बदअकीदा और नऊजुबिल्लाह इस्लाम से खारिज शख्स होगा? कैसा आपका अकीदा है साहब? समझ से बाहर बात है। ये तो गैर मुस्लिम सुनेगा कल को फ्रांस का, जर्मनी का जो नई ईमान मिलाने वाला कहेगा आप जैसे लोग हैं लानत तो है गैर ऐसे लोगों मुस्लिम पर, नहीं, पता नहीं ऐसी ऐसी कौन बातें करते हैं और कौन मौलवी सुनेगा। बताते हैं अपने आप को हैं। क्या आला ये मानते हैं कि बरेली में रजा मस्जिद में तो कभी बदअकीदा ने नमाज नहीं पढ़ाई 100 साल में, और ये भी मानते हैं वही लोग के मस्जिद नबवी में इमाम बदअकीदा 50-100 साल से नमाज पढ़ा रहा है। यानी बदअकीदा क्या मतलब? गैर मुस्लिम, जो मुसलमान ही नहीं है। मुजद्दिद आजम हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत क्या हूँ ये पता है आपको? कितने बड़े खालिक कुल मालिक कुल बना दिया, दोनों जहाँ कितने बड़े अपने वक्त के सैयद आलिम और इतने बड़े सैयद आलिम थे, तो ये बदायूं वाले क्यों नहीं मानते, मकनपुर वाले क्यों नहीं मानते, जामनगर मिसर वाले क्यों नहीं मानते, फिरंगी महल वाले क्यों नहीं मानते? समझ में नहीं आ रही ये बातें कि वो कैसे मुझे सब कुछ आला हजरत ने दे दिया, उसके बावजूद भी कोई न माने। आला हजरत ने दे दिया तो अल्लाह रसूल ने क्या दिया फिर? नहीं, सब कुछ आला हजरत ने दे दिया, अगर उसके बावजूद भी कोई खानका वाले न माने रसूल ने क्या दिया तो उसमें उसका कोई कसूर थोड़ी नहीं। फिर अल्लाह रसूल ने क्या दिया? अल्लाह रसूल ने क्या दिया? सब कुछ अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह रसूल ने क्या दिया? सब कुछ से मुराद मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप खुद भी समझ रहे हो। आप लोग जो चाहो मुरादे लगा लो, जो चाहो सही कर दो, जो चाहो जायज कर दो, जो चाहो नाजायज कर दो। आपके हाथों में बागडोर, जैसे बीजेपी के हाथ में हुकूमत है, जैसे चाहेंगे हम कर लेंगे। ऐसी दीन की बागडोर आप लोगों के हाथ में, जैसे हम चाहेंगे जिसको चाहेंगे काफिर बना देंगे, जिसको चाहेंगे मुसलमान बना देंगे। बागडोर दीन का बागडोर किसी के हाथ में नहीं है। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत इजाद कर दिया है वही शरीयत चल रही है। मसला के आला हज़रत का नारा लगाए तो वो मुसलमान है, जो ना लगा तो काफिर। आपको लोगों का यकीदा हो चुका है कि जो अल्लाह की हर बात न माने तो उसको काफिर करार दो, जो हर बात माने उसे मुसलमान। क्या हो, कितनी गुनाह करे? आला हजरत ने गुलाम जिलानी अजली ने जिना किया, कर्नाटक की जेल में रहा, उसे आप हीरो बना रहे हो कि अल्लाह का नाम ले रहा है, हीरो बनाओ। अम्माद रजा ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, उसको आप हीरो बना रहा हो। उसने कहा तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, उसको आप हीरो बना रहा हो कि आला हजरत को मानता जाए, कुछ भी कहे उसे अपन को मुसलमान साबित करना, जो ना माने उसे काफिर साबित करना है। आपने दीन और ईमान का मेयार आला हजरत को करार दे दिया, जबकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने तो फरमाया कि कह दीजिए तुम्हारे बेटे, तुम्हारे आबा और इख्वान भाई और अज़वाज, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अज़ीज़ व क़ारिब, जब तक हर चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं होगी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और आपने फाजिल बरेलवी की मोहब्बत को ईमान करार दिया है कि जो उनको माने तो मुसलमान, नहीं माने तो क्या लाख दरूद शरीफ पढ़े, लाख मज़ारों पे जाए, लाख औलिया अल्लाह को माने, उसे मुसलमान नहीं समझा जाएगा। जामिया घर वाले भी आपकी नज़र में आपके हिसाब से मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मसले की आदत को नहीं मानते, उसामा हरमैन को नहीं मानते, लेकिन मजबूरन आप उन्हें सुन्नी बनाते हो कि हम पढ़ के आते हैं। अगर हम कह देंगे सुन्नी नहीं है तो लोग हमें कहेंगे कि क्यों फिर सुन्नी नहीं है तो जाते क्यों तुम? नहीं साहब, आपको आला हजरत से क्यों? ये सब बातें हैं। आप लोगों ने दीन ईमान के अरे मानते हैं, हम आलिम मानते हैं, फाजिल मानते हैं, मुफ्ती मानते हैं, मगर नबी की तरह से नहीं मानते जैसे नबी नहीं, आपको आला हजरत से मुल्ला कहा साहब उन्होंने कहा हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम नहीं है, फाजिल बरेलवी जो कहा था। और ये कहा था जो मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो नहीं मेरा तेरा, यानी वो कुछ भी कहे तो फिर आपको सैयद सिद्दीन हैदर मियां से चिड़ो क्यों है?
جو انہی کے خاندان کے سید سبت حضرت میاں، ان کی بھی تعظیم کرو، ان کو بھی مانو کہ بے شک وہ بھی امام اہل سنت ہیں، بے شک وہ بھی تاجدار اہل سنت ہیں۔ ایک سید کو الگ کر دیا، ایک کو آپ نے اپنا رکھا، گلے لگا رکھا ہے۔ یہ دو طرح کی ترازو نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ جیسے کوٹا ساجد ڈیڑا والا ادریس، وہ الیاس قاضی کو بہت بڑا مومن مانتا ہے اور علامہ طاہر قاضی کو کافر مانتا ہے، وہ امام حرم کو مومن نہیں مانتا یہ ساجد ڈیڑا والا ادریس، اور جو ہے کہ الیاس قاضی کو مومن مانتا ہے، جس نے کہا صحابہ کرام مومن، صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، جس نے کہا کہ اللہ کے رسول کھڑے صفحہ 31 جیسا سنت میں لکھا ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو یہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے لکھا کہ صفحہ 27 میں جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، جو ایسی گستاخیاں لکھ چکا ہے الیاس قاضی کر چکا ہے، اس کو تو آپ مسلمان مان رہے ہو، علامہ طاہر قاضی کو کافر مان رہے ہو، اس لیے کہ علامہ طاہر قاضی ہر بات میں اعلیٰ تذکیر نہیں کرتے اور الیاس قاضی کر رہا ہے، تو یہ معیار بنا لیا آپ نے، اللہ حفاظت فرما۔